Hello and assalamu alaikum viewers. This is Hassam Haider with Gera Badal Do Zamanas, yet another episode powered by Universal Study Advisors. आज के एपिसोड हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे कुछ मेहमान हैं जो यूके से और लैटविया से हैं लेकिन बेस्ड हैं यूके में और उनका तारुफ करवाते हैं आपको. आज हम स्टूडेंट्स की जो है वो एजुकेशन पे बात करेंगे, उनके एडमिशन से लेकर उनको क्या मसाइल आते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं. बीपीपी के हवाले से हम बात करेंगे, साथ ही यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स किन यूनिवर्सिटी को कैच कर रहा है और आपको किन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन बेहतरीन दिलवाने के लिए कोशा है. तो सबसे पहले अपने रुख करते हैं गेस्ट का. मिस अरीना हमारे साथ मौजूद हैं. अरीना, वेलकम इन आवर episode and you are the senior agent and relationship manager at BPP University. Thank you so much for joining us. डॉक्टर शहजाद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ हैं स्कॉट ब्रांड के, उनसे भी डेफिनेटली आज हमारी बात होगी. डॉक्टर शाहिद नदीम साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स. तो अरीना की तरफ जाते हैं. अरीना, आपसे आई हैव टू आस्क द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज़, Arina, what's the pronunciation of your second name? If you say it in English, it's Majusova. Majusova. Yes. And in Latvian? If you say it in Latvian or Russian, we have different sounds. It sounds as Matushova because we have soft U and ash sound letter, but in English language, they use the English letters. Right. So, Arina, you are the senior agent relationship manager at BPP University. Yes. What are the challenges international students, specifically international students, face when they get admission or they are trying to get admission from their respective countries? It depends on the market, but predominantly it would be the English language test. Some of the English language tests are more challenging than others, and students sometimes struggle to pass them because even if you have a good level of English, it can be difficult. But with a right preparation, a lot of attempts to try to pass as a mock test, all students sooner or later pass it and move on onto their application. The visa application can be challenging, but most of the agents support students with their visa applications and any immigrations. There are new updates on the financial requirements from the UKVI, so students need to have more money in their bank account to provide proof to the UKVI that they can support them financially, living costs and tuition fee costs. So that can be a challenge, and as well as moving to an absolutely new country, especially if you've never lived abroad, if you've never visited abroad, it can be a drastic change, and it requires some time to get used to it, to get used to the culture, the weather, the food maybe, but everyone who moves to the UK really enjoys it. It's a multicultural country, and we have nice weather. It doesn't rain all the time. So students who struggle, they have in most of the universities, but in BPP University we have support services that can help students with settling in, and they won't feel alone or lonely or homesick when they're studying with us. So, Arina, what are the core strengths and global vision of BPP for international students specifically? So for international students, BPP is always expanding and adding additional courses. We have recently introduced MSc Technology Management with cybersecurity. We will be introducing more healthcare related courses. We've introduced undergraduate business applied management. So everything related to business international, and obviously nowadays it's IT and AI. That's something we're going to look in the future as well. When we talk to the students and they say that the BPP is providing very less amount of courses for graduates, so why is that? Yes, BPP University is university for professions, and we concentrate on limited amount of the subjects, but we ensure that we give this education that is required for them to successfully move on to their jobs after. So we look at the current trends, we speak to the employers, and we ensure our programs are built for students to successfully land their careers when they come back to their home countries. And what makes BPP stand out among UK universities? Well, first of all, our
12 intakes a year is very attractive. Our locations were based in central London and also Manchester, two very popular cities in the UK. Manchester is second most popular cities. Our courses, our law school is one of the top leading schools, law schools in the UK. We offer a wide variety of courses in business, healthcare, law, technology. We offer MSc Accounting and Finance. You can do your ACCA with us. We offer a great career support services, well-being support services, and everything you need. Sarina, how well your course line is equipped when students wants to, settle down in the industry or with the industry, your educational course plus the industry, the balance? Yes. Okay, so we work closely with employers to understand the trends and what they're currently looking from graduates. So that is a huge advantage as well for us. But we also follow the trends in terms of the skills gaps. So we look at those skills gaps and we add them to our courses so we can potentially fill those gaps. We work closely with international companies. We work closely with the market to understand what they want from the graduates as well. So in combination altogether, I think we're leading provider of the courses, because we also, as part of the BPP Education Group, we have various education providers, and we offer professional qualifications, and you can also get professional qualification as part of your professional development planning course. So you can study for project management qualification, marketing qualification, and that will help you stand out from other graduates, because you will also have that specific qualification on top of your degree. अरीना से हमारी बात हुई. अरीना ने बीपीपी यूनिवर्सिटी जो जाना चाहते हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पर इनरोल होना चाहते हैं, उसके हवाले से बहुत गहरी और वसी मालूमात जो है आप तक पहुँचाई हैं. और अभी रुख करेंगे डॉक्टर शहजाद अनवर साहब की जानिब. स्कॉट ब्रांड के सीईओ हैं. डॉक्टर साहब वेलकम. और सबसे पहले बताइएगा कि स्कॉट ब्रांड जो है वो कैसे काम कर रहा है यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के साथ भी, बिकॉज दिस होल ट्रांसमिशन इज़ स्पॉन्सर्ड बाय यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स. और हम बहुत कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस किया जाए, ताकि आगे चल के वो यहीं से सारी चीज़ें उनके जहन में हों और वहाँ जाके वो उसको हल कर सकें. तो आपका ब्रांड इसके लिए क्या काम कर रहा है, और मुझे ये भी बताएगा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं. स्कॉट हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र उसका एक पार्ट है, सब्सिडरी है जी. तो हम लोग स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में पर्टिकुलरली हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है पिछले 6-7 साल के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने फ्री कंसल्टेंसी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया. हमने स्कॉलरशिप्स इंट्रोड्यूस करी अपने प्लेटफॉर्म के, स्कॉप के प्लेटफॉर्म से. हमारा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप काफ़ी मशहूर हुआ स्टूडेंट्स के दरमियान. उसके अंदर हमने कोशिश ये की कि जब कोई स्टूडेंट पाकिस्तान से सोचता है कि उसने बाहर पढ़ने के लिए जाना है, तो उसके रास्ते में जो हर्डल्स आती हैं, जैसे वो किसी एजेंसी के पास जाता है कैरियर काउंसलिंग लेने के लिए, उसके लिए वो फ़ीस पे करता था. तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र ने उस फ़ीस को रिमूव कर, फीस बिल्कुल नहीं है कंसल्टेंसी की. उसके बाद वो जाता था इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की प्रेपरेशन करने के लिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर को पे करता था. उसके बाद फिर वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए पे करता था. तो फिर यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र ने ग्रेजुएट्स के साथ, जो हमारी ही एक अनदर सब्सिडरी है स्कॉट की, उसके साथ मिलके एक स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर हमने ये कॉस्ट भी कवर कर दी. उसके लिए हमने कोशिश की कि जो हमारा मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का स्टूडेंट है, वो बाहर जाके पढ़ने को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना समझे या डिफ़िकल्ट ना समझे. एंड देन फिर हमारी पार्टनरशिप्स जो है, जैसे बीपीपी यूनिवर्सिटी के साथ है, और बीपीपी यूनिवर्सिटी अभी बीपीपी यूनिवर्सिटी ही नहीं है सिर्फ, ये अब बीपीपी एजुकेशन ग्रुप बन गया है, क्योंकि इन्होंने एक्वायर कर ली इंस्टीट्यूशंस. बीपीपी इंस्टीट्यूट है मेलबर्न के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, उसके अंदर यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र अब स्टूडेंट्स को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए. इसी तरह एक अदर इंस्टीट्यूशन है वैनकूवर के अंदर, एक्सेंडा बिजनेस स्कूल के नाम से. तो ये तीनों इंस्टीट्यूशंस मिलके बीपीपी एजुकेशन ग्रुप बनता है. ठीक है, तो यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र के प्लेटफॉर्म से अब सिर्फ बीपीपी में यूके में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे. अगर वो से बीपीपी के लिए क्वालिफाई नहीं करते बीपीपी यूनिवर्सिटी के लिए यूके के अंदर, तो हम उनको ऑफ़र करेंगे कि चले आप बीपीपी इंस्टीट्यूशन में चले जाएँ मेलबर्न में. अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते तो आप एक्सेंडा बिजनेस स्कूल में चले जाएँ वैनकूवर के अंदर.
आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं एट वन प्लेटफॉर्म. अच्छा सर, इससे मुझे एक चीज़ भी याद आई. मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है, लाहौर में वो करा था ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स. तो उसके पास जो बुक्स थी वो BPP की थी. या तो BPP इज़ ऑल्सो क्लोजली वर्किंग विद अदर सर्टिफिकेशंस के, उनका जो कोर्स लाइन है वो भी सेटल डाउन करते हैं, उनके हेल्प करते हैं, बुक्स भी उनकी अपनी हैं. या VPP एक पब्लिशिंग कंपनी थी एक्चुअली पहले, ठीक है, और जो अकाउंटिंग की बुक्स हैं ये VPP पब्लिश करती थी इसको. और UK के अंदर हर 4 में से जो एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट है वो VPP से स्टडी किया हुआ है. राइट. तो अकाउंटिंग, लॉ, बिजनेस, ये स्पेशलाइजेशंस हैं VPP यूनिवर्सिटी की UK के अंदर. सही. तो सर आपकी लास्ट डिग्री एज पर माई इन्फॉर्मेशन वो UK से थी. तो जब आप पाकिस्तान से गए तब आपको क्या हर्डल्स आए, और अब आप क्या देखते हैं जो आजकल की लॉट है, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कितनी आसान और कितनी मुश्किल हो गई? या मेरे हिसाब से पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गया. जब हम लोग गए थे, हम लोग भी एज अ स्टूडेंट्स ही गए थे. मैं, शाहिद, दोनों हम क्लास फेलो हैं पाकिस्तान से भी. मैंने जाके बायोमेडिकल साइंस पे डिग्री की. फिर हम लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. अब हमारे पास 2200 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं 3 कंट्रीज़ के अंदर. और लोग बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से गए. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर दुनिया के अंदर जो हमारी यंग जनरेशन को डेफिनेटली अवेल करनी चाहिए. और उस हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो उनके लिए रास्ते आसान करें. हम लोग यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र के प्लेटफॉर्म से उनके लिए हम लोग आसानियाँ पैदा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट जाके उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें. राइट. शाहिद साहब की तरफ जाएंगे. शाहिद नतीम साहब डायरेक्टर हैं यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के. सर, जिस तरह से आप खूबसूरती से लेकर चलते हैं सबको, तो और मतलब लाइक अ फैमिली, तो जब UK स्टूडेंट्स जाते हैं तब डेफिनेटली कुछ लॉस्ट हो जाते हैं, कुछ अपने आप को थोड़ा होम सिक फील करते हैं. तो सर उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी भी जो डिग्री है वो UK से ही है. पाकिस्तान से आप पढ़ के फिर UK चले गए, जैसे अभी डॉक्टर शहजाद अनवर साहब ने कहा, तो यू वर क्लास फेलोज, फ्रेंड्स. तो वहाँ जाके आपको कैसा फील हुआ था, और अब आप क्या समझते हो जो बच्चे आजकल आ रहे हैं जिनको होम सिक फील होता है या अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के प्लेटफॉर्म से भी, स्कॉप के प्लेटफॉर्म से भी, वो क्या? बेसिकली जब हम यहाँ से गए थे UK में तो उस वक्त कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था कि जिसके थ्रू हम गए हैं, जो उन्होंने आगे कोई उनका आगे सिस्टम था UK के अंदर. हमने सबसे पहले इस चीज़ को फील किया, और उसके बाद आप जो भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू जा रहे हैं वहाँ पे, उनको अगर कोई इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे कोई इशूज़ हैं उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं. अकामोडेशंस के इशूज़ हैं वो हम सॉर्ट आउट करते हैं. इवन जॉब्स के इशूज़ हैं वो भी सॉर्ट आउट करते हैं. इवन जब डिग्री उनकी कंप्लीट हो जाती है, अभी स्टिल अगर उनको कोई फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन के रिलेटेड भी कोई एडवाइस चाहिए, तो हमारे जो पैनल है उसके ऊपर सोलिसिटर्स अवेलेबल है, तो उनके थ्रू भी हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, विच इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये चीज़ उस वक्त हमें अवेलेबल नहीं थी, जो कि अब हमने उन चीज़ों को आगे लेके क्या आसानी हो आने वाले की आसानी. और इसी वजह से तो जितने अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बिज़नेस की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ना सिर्फ हम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 15 ब्रांचेज यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स की डिफरेंट सिटी पाकिस्तान के अंदर. ये सबसे हमने जो मेजर हमने जो काम किया पाकिस्तान के अंदर. और इसके साथ आफ्टर द वीज़ा जब वो UK जाते हैं तो उसकी वो अलहदा हम उसकी वहाँ पे सर्विस दे रहे होते हैं. वो बेशक स्टूडेंट्स हमारे बर्मिंघम में जाए, मैनचेस्टर जाए, लंदन जाए, कहीं भी जाएँ, तो हम उसके ऊपर चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन वो दे रहे होते हैं वहाँ पर. तो नाज़रीन, ये एक बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र्स, वो बच्चे जिनको कोई कानून के हवाले से UK में जाके मसला है, सोलिसिटर्स यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र्स के पैनल पर मौजूद हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका मसला हल करते हैं. अभी डॉक्टर शाहिद नदीम साहब ने ये बताया, और कोशिश की जाती है अगर उनको रिहाइश का कोई मसला आ रहा है, उनके एजुकेशन के हवाले से कोई मसला आ रहा है, उनको वैसे वहाँ पर कोई मसला हो गया, तो उसको वो हल करें यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र के प्लेटफॉर्म से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर आप जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र के प्लेटफॉर्म से, तो आपको ये तमाम सहूलियात वहाँ पर UK में जाकर फ्री मिल सकती हैं. अरीना की तरफ जाएंगे. अरीना, you're both partners were talking about the UK and living and education. You are from, your ancestors or the father mother are from Latvia, Russia. Yes. So many people shift to UK because it's easy, international language, English is, and there is so much rush, or there is so much, like I must say UK is now overcrowded, which we hear here in Pakistan, that UK is so much overcrowded, there are less opportunities now. Is it true then?
Not necessarily true, but it doesn't apply to education because UK higher education is well-known fact that it's a high-quality education. And after completing education in the UK, you have opportunities across the globe. It's A, it's English language, B, it's high-quality education, and the skills that you will learn, skills and knowledge that you will learn, you can apply anywhere in the world, or you can come back to your country and you would be in high demand because you have the British education. Even if there are rumors that it's overcrowded, it doesn't necessarily mean that you won't be able to find a job there, or you won't be able to find placement opportunities or internship, so you can gain, experience and then move onto your next step. But we live in a global world where we can move around. We have a lot of remote jobs available. I think education is first important step to do, and it's a wildcard entry that if we have the degree, or if we have a foreign or British degree, we can absolutely enter. Yeah, and it's a British degree. You just need to pick your university that will give you that necessary knowledge and skills and maybe professional qualifications, and just have a certain plan what you want to do after. ये रूमर्स हैं कि यूके ओवर क्राउडेड हो गया है यूके, और यूके में ना जाएं, जॉब्स नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। और यूके की जो एजुकेशन है वो बहुत हाईली जो है स्किल्ड एजुकेशन है, और उसको अगर आप अवेल कर लेते हैं, उससे आप डिग्री यूके से हासिल कर लेते हैं, पाकिस्तान आके आपके पास बहुत सारे होराइजन्स, आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, प्लस आप दुनिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो अपने इस ऑप्शन को ज़रूर कंसिडर भी कीजिए। डॉक्टर शहजाद अनवर साहब, अभी जैसे अरीना से भी बात हुई, तो वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं उनका ये कोशिश होती है कि अगर वो डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री के साथ जॉब भी करें और अपनी एजुकेशन को भी सपोर्ट करें, अपने घर को भी सपोर्ट करें। तो कितना आसान है ये वहाँ जाकर करना? ये इतना ज़्यादा आसान तो नहीं है। आई विल बी ऑनेस्ट, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल फ़ी यहाँ से पे करके गए, फिर वहाँ पे उनको पार्ट टाइम वर्क अलाउ होता है 20 आवर्स पर वीक, उसके साथ उन्होंने अपनी लिविंग मैनेज की, और बीच में जो आपके पास टर्म हॉलीडेज़ आती हैं तो उसके अंदर, और आपके पास 4 मंथ का एक्स्ट्रा वीज़ा भी होता है, उसके अंदर आपके पास फुल टाइम वर्क अलाउ होता है आपको, और उसके बाद आप अभी 18 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी अवेलेबल है। उस सारे पीरियड के अंदर आप फुल टाइम काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप जितना अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा गुना आप कमा के वापस ला सकते होते हैं। एंड जो आपका क्वेश्चन था अरीना के साथ कि ओवर क्राउडेड हो गया यूके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, प्लीज़ इस पर भी थोड़ा सा बताएं। ठीक है, अगर आप राइट प्रोफेशंस क्वालिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, जैसे हमारे पास हेल्थ केयर लीडरशिप का कोर्स है, हेल्थ केयर के अंदर शॉर्टेज है यूके के अंदर, दे नीड मोर पीपल टू वर्क इन द हेल्थ केयर, ठीक है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल स्किल्स के जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आप जाएं, डाटा एनालिटिक्स है, इस तरह के कोर्सेज के अंदर जिसके अंदर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है, जो एआई डेटा साइंसेस बिल्कुल आजकल बहुत, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को ज़्यादा सिलेक्ट करें रेदर दैन जो ज़्यादा सब्जेक्ट कन्वेंशनल है, या ठीक है, तो उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो डॉक्टर शाहिद नदीम साहब, आप बताइएगा कि अभी जैसे आपने बात की कि स्टूडेंट्स को आप लोग कानूनी तौर पे जो है वो बहुत फैसिलिटेट करते हैं और आपका वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है, तो स्टूडेंट्स को जॉब के हवाले से कितना फैसिलिटेट यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स कर सकता है, और अगर वो राइट प्रोफेशन में या राइट आप कह लें डिग्री जो डिमांड में है उसमें जा रहे हैं, जैसे अभी शहजाद अनवर साहब ने कहा, तो सर तब स्कोप कितना है और वहाँ पर यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स कितना फैसिलिटेट कर सकता है? बेसिकली जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे थ्रू जा रहे होते हैं इनका सारा डेटा हमारे पास मौजूद होता है वहाँ पे ना। तो कुछ लोग जैसे एक होती है जॉब जो एक इनिशियल स्टेज के ऊपर इनको चाहिए, वो जितने स्टूडेंट्स जाते हैं उनके थ्रू एक हमारा डेटा बेस बना हुआ है, उसके थ्रू हम लोग उनको असिस्ट करते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। जब इनकी डिग्रीज कंप्लीट हो जाती हैं फिर हमारी जो वहाँ पे टीम है वो इनको कोई CVs के मतलब अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर इसी तरह हमारे कुछ और पार्टनर्स हैं वहाँ पे, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उनको हम रेफ़र करते हैं इन्हें। प्लस वहाँ पे जॉब फेयर्स होते हैं, जैसे उनके अंदर भी ये लोग जाते हैं, तो कहीं से भी हमें कोई भी फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन आ रही होती हैं तो हम डेफिनेटली अपने जितने स्टूडेंट्स हैं इनको रेफ़र कर रहे होते हैं कि ये ऑप्शन है, यहाँ पे अप्लाई करें, ये ऑप्शन है। तो इस तरह हमारी कोशिश होती है। अब जैसे कि एक मेजर हम वहाँ पे काम करने जा रहे हैं कि हम यूके के अंदर तकरीबन एवरी कोई 6 सिटीज़ के अंदर बड़ी इवेंट्स करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू जा चुके हैं वहाँ पे, हम उनको वहाँ पे गैदर करेंगे। अगर उनकी कोई वहाँ पे क्वेरीज हैं इन रिलेशन टू फ्यूचर जॉब्स, इन रिलेशन टू कोई भी मैटर उनकी,
تو ہم لوگ ان کو وہاں پہ وہ ساری سروسز انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے تاکہ ہم یہ نہیں کہ صرف ان کا ویزا لگا اور وہ چلے گئے اور انہوں نے اپنی جاب اسٹارٹ مطلب لائک ایلومنائی ایلومنائی اپنے کانفرنس شروع کریں. سوری میں اس میں بات کروں گا کہ 35,000 پاکستانی اسٹوڈنٹ لاسٹ 1 ایئر کے اندر گیا ہے یو کے میں پڑھنے کے لیے. تو ہم لوگوں نے وہاں پہ او پی ایف کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر امجد, او پی ایف سر ناظرین کے لیے آپ ایکسپلین. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, یہ گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے. ان کے ساتھ مل کے ہم لوگ یہ وہاں پہ او پی ایف کے شیلٹر کے نیچے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ایک فورم بنا رہے ہیں جس کی گیدرنگز اور اس کو باقاعدہ پاکستان سے پاکستانی گورنمنٹ کی بھی. تو سر کہیں آپ لوگ بی پی پی کے مقابلے پہ یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز اور اسکاٹ برانڈ جو ہے وہ اپنی کوئی یونیورسٹی تو لانچ نہیں کرنا چاہ رہا. ارینا, آر دے گوئنگ ٹو لانچ اے یونیورسٹی against BPP because they are like doing everything. So Leicester facilities are there. They are going to create an alumni for students. I hope not. And if they do, I think they would be very successful. Yeah, they would. Yeah, anything they do, they're very successful. So we have a very good partnership with BPP Education Group, and we are the largest recruiter for them from Pakistan, and the BPP is the largest sponsor for Pakistani students in the UK. صحیح. اور اس کے ساتھ جو بی پی پی کی سروسز ہیں, کوئک سروسز, اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں دے آر ویری سیٹسفائڈ, ہائیلی سیٹسفائڈ, اور اٹس ویری ایزی فار اس بیسیکلی ٹو میک دیم سیٹسفائڈ فار بی پی پی یونیورسٹی فار ڈفرنٹ کورسز. سو وی آر گوئنگ ویری الحمدللہ ویری سکسیزفل ود بی پی پی یونیورسٹی اینڈ دے آر ہیپی ود اس اینڈ وی آر ہیپی ود دیم. So this is good. And most importantly, students are very happy. Yeah, students are very happy. بالکل. دیکھیں ناظرین کو بھی ہم یہ بتاتے چلیں کہ جو یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز کے ڈائریکٹر ہیں پلس سی او اسکاٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ود بی پی پی یونیورسٹیز سینئر ایجنٹ اینڈ ریلیشن شپ مینیجر. تو ان کا جو کولیبوریشن ہے وہ آپ کو اس نشست میں ہی نظر آ رہا ہوگا کہ ان کا کولیبوریشن کتنا زبردست ہے. بیکاز اسٹوڈنٹس جتنے بھی گئے ہیں بی پی پی یونیورسٹی میں یا یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزر اور اسکاپ کے پلیٹ فارم سے, تو وہ جا کر وہاں پر انتہائی سیٹسفائڈ ہے اور ان کو کوئی دقت یا کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا ہے. تو بی پی پی یونیورسٹی ابھی نا you guys are based in UK in London, the capital city London of and UK, plus Manchester. Yeah. So you guys are also entering in Australia and Canada. You have collaborations there. So we have acquired institutions in Canada and Australia. Yeah, that's right. So if students want to opt, like if they don't want to go to UK, then they have the option to go through Universal Study Advisors. In Canada or Australia. Yes, that's correct. So we want a student come to our agents and have one, brand of BPP, and they can go either to Canada, Australia or UK. Okay. تو بالکل اب یہ ایک امبریلا بن گئی ہے بی پی پی. اگر آپ یو کے نہیں جانا چاہتے, آپ کو یو کے کا ویدر جو بہت خوبصورت ہے آپ وہ انجوائے نہیں کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ آسٹریلیا کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو بی پی پی کے کیمپسز ادھر بھی ہیں, اور یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرز پلس اسکاپ جو ہے وہ آپ لوگوں کو وہاں بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو سر یہ بتائیے گا, یو کے ویدر کی بہت بات ہوتی ہے, یو کے ویدر بہت خوبصورت ہے, یو کے میں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو اٹریکشن ہیں فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ڈسپائٹ آف دی ایجوکیشن, آف کورس کہ ایجوکیشن بہت اچھی ہے اس کے علاوہ. کیونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کے بارے میں. جی. تو اس میں مجھے جو سب سے بڑی اٹریکشن لگتی ہے وہ ہے ریلیجیس فریڈم. ٹھیک ہے, وہ جو آپ کو یو کے میں آپ ایکسپیرینس کریں وہ دنیا کے اور کسی نان مسلم کنٹری میں آپ کو مطلب ریسزم نہیں ہے. آپ کو ماسکس ملیں گی ویری فریکوینٹلی, مدرساز ملیں گے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایزیلی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. اور 1.6 ملین پاکستانی جو ہے وہ یو کے اندر ایک بڑی ایٹ دا مومنٹ, جو کہ پاکستانیوں کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے آفٹر سعودی عربیہ ان اوورسیز. ٹھیک ہے. تو شاہد صاحب آپ کے نزدیک کیا چیزیں ایسی ہیں اٹریکشن کہ اسٹوڈنٹس کو یا فیملیز کو ادھر جانا چاہیے؟ ہم بیسیکلی جیسے ابھی پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا ون آف دی آپشن تھی, آپشن ہے ابھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو جابز اپرچونیٹی ہیں وہ یو کے اندر وہ کافی پروفیشنل جابس وہ کافی زیادہ اویلیبل ہیں وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ جا کے واپس بھی ابھی بنانا چاہ رہے ہیں یا کسی اور کنٹری میں بھی جانا چاہ رہے ہیں, جیسے آسٹریلیا ہے, وہاں بھی وہ جابس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, ایون کینیڈا کے لیے موو کر سکتے ہیں. تو اب ان کے لیے ایک جو ورائٹی آف ڈیسٹینیشنز ان کے ساتھ ان کو مل گئی ہیں بیسیکلی, جو کہ باقی جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اتنے کیمپسز نہیں ہے سٹیز کے اندر.
अगर आप ऑस्ट्रेलिया है, ये पाकिस्तान से काफ़ी स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, फिर इसी तरह कनाडा, इवन कनाडा में कम स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन स्टिल अब एक ऑप्शन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए आ गई है बीपीपी यूनिवर्सिटी के थ्रू कि आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स के लिए। अब उनके पास पहले सिर्फ यूके, अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि यूके था तो अब वो यूके नहीं है, अब उनके पास ऑस्ट्रेलिया है, अब उनके पास कनाडा है। यस, तो फ्यूचर के अंदर भी यूएई के अंदर भी कोई प्लानिंग्स बीपीपी यूनिवर्सिटी आर ओपनिंग द कैंपसेस, तो इस काफ़ी वैरायटी ऑफ डेस्टिनेशन अवेलेबल होंगी स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। And we hope Zabardast. BPP University is coming in Dubai as well. यस, Arina, अभी बात करी थी that you are moving to UAE. I already moved to Already UAE. You have already moved. So Arina, is there something in pipelines or they are going to implement it very soon? So at the moment we opened an office in UAE, and maybe soon there will be an institution as well. There will be a good news about for the students regarding BPP's Yes. new institute or new campus there in UAE. Yes, maybe. तो UAE भी बहुत करीब है, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान से बहुत करीब है, एक वो ऑप्शन भी जो है बहुत वो, ज़्यादा करीब है, मिलेगा। दुबई का पानी। एग्जैक्टली तो आज की नशिस्त में आप लोगों ने बिल्कुल जाना होगा कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स आपको कानूनी तौर पर मुफ्त जो है वो मुआवनत फराहम करेगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई रेजिडेंस का इशू आता है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए भी एक्टिव है। और यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र के प्लेटफॉर्म से जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आज हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि उनको किसी किस्म का इशू नहीं पेश आता, अगर आता है तो हम उनके साथ कदम ब कदम खड़े होते हैं, एक अम्ब्रेला की तरह, एक फैमिली की तरह हैं। साथ एक अलुमनाई बनाने जा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इनके प्लेटफॉर्म से गए हैं यानी यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के हमारे प्लेटफॉर्म से, वो डेफिनेटली वहाँ पर आएँ, अपनी गैदरिंग करें। और उसमें ये भी होता है कि अगर आप कोई अच्छी सीट पर है, अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी कंपनी में है, तो जो अभी कोई स्ट्रगलिंग है कुछ है उसकी भी हेल्प हो जाती है। तो पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। साथ बीपीपी यूनिवर्सिटी के साथ जो इनका कोलैबोरेशन है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, बहुत सालों पर मुहित है। और ना सिर्फ बीपीपी यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, बल्कि यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स भी उनके साथ उतनी ही मुतमईन है जितनी बीपीपी यूनिवर्सिटी वाले हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। आप अपने जो कंसिडर कर रहे हैं कंट्रीज़ को, उसमें अब आप यूके के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी कर सकते हैं क्योंकि बीपीपी के कैंपसेस उधर भी हैं और यूएई में भी बहुत जल्द वो खुल जाएंगे। हम अपने जो आज के हमारे मेहमान हैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज के एपिसोड में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डिस्कस हुए हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ और नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। 11 बदल दो ज़माना सीरीज़ है जिसका मेन मकसद है ग्रूमिंग, एजुकेशन और अवेयरनेस। कीप इन टच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।